Mishra also has joined. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Praveen Kumar Mishra ji. Namaskar. प्रवीण जी आपका अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है शायद. प्रवीण जी, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज? आप म्यूट में हैं, आप अनम्यूट कर दीजिए. यस सर. यस सर, सुनाई दे रहा है सर. Shall we, sir, only 1,500 people have joined. So, sir, shall we start or shall we wait a little? Wait, just यस सर, यस सर. 2 minutes wait कर ले. 2 minutes तो wait कर लीजिए. मेरे ख्याल में वैसे आ रही है सर. 5,000 चालू है सर. हाँ सर, मैंने कर दिया सर, म्यूट कर लिया. हाँ हाँ, कर दिया सर, कर लिया सर. Ashok sir, good morning. Good morning, Dr. Narendra. Yeah, sir. I think now he's available. Can Yeah, we are audible now? but as per such direction, see, only 1.6 thousand people have joined. So we'll just wait for 2 more minutes, then we'll start. Okay, sir. Noted. आशुतोष सर. हाँ जी, बोलिए. सर, we have to use one language or we have to use bilingually sir? हाँ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के क्लास लेना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. तो कुछ लोग तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के यूज करना. Okay, that's why I'm asking. We have to use both the language or we have to use only English? No, both. Thank you sir. Sir, shall we start, sir? Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Respected Dr. G. Kishore sir, Principal ILNCP. Respected Praveen Kumar Mishra sir, Physical Education Teacher from Swaminarayan Vidyapith, Karam sir. I, Dr. Ashutosh Acharya, welcome all of you to the third day of the 8th batch of eKhel Pathshala Physical Education and Community Coaching Program Foundation Level course. Ladies and gentlemen,
Today amongst us, we have Sri Praveen Kumar Mishra, physical education teacher from Swaminarayan Vidyapit. Sri Praveen Kumar Mishra ji has PhD, MPhil, MPed. He has done BPed as well. And he has an experience. He also has worked as a physical education teacher in different schools. He also has acted as officials in All India Inter-University Track and Field Meet held at Gwalior and acted as assistant teaching in track and field activities theory in LNIP Gwalior. He also has many research publications and he has written various books in the area of athletics and biomechanics. So, ladies and gentlemen, today the speaker of the day will be speaking about appropriate foundation years till class 12. So, without any further delay, ladies and gentlemen, I welcome our speaker of the day, Mr. Praveen Kumar Mishra ji. Sir, now the stage is yours. Thank you so much, sir. First of all, I will thank you to Sai LNCP to give me opportunities to present the topic. A special thank to Narendra sir, G. Kishore sir, very seniors to me, and Ashutosh sir to give me opportunities to give my views related topics. Now my topic is age appropriate in activities in relations to class 1 से लेके class 12 तक में. Now how we determine, हम कैसे एज एक्टिविटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं या कैसे एज एक्टिविटी एज से रिलेटेड हम एक्टिविटीज को हम जनरेट कर सकते हैं या हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं रिलेशंस टू देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन रिलेशंस टू क्लास 1 यानी क्लास 1 से 6 to 18 इयर्स चाइल्ड्स के बीच में. इट मे बी वी हैव टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, हम उनके इंटरेस्ट बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, जो कि एवरी स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने 11th एंड 12th में पढ़ा होगा. इट इज बेस्ड ऑन द शेल्डन बेस की मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी. अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर सम एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स. मैंने आपको few points बताए. Yes. Praveen ji, please put your presentation in slideshow mode, in a full screen mode. Sir, it is full slide. Can I think just share it again. This one? Yeah, fine. Okay, thank you. Now, I'm telling that what type of activities we have to build according to the age categories in relations to class 1 to class 12, or it may be the age factor is at the age of 6 to 18 years. Now, my point, we have to generate some activities according to particular criteria or on the basis of interest of the students, on the basis of choice of students or players, or it may be the previous year experiences, यानी उसने previous में कितना learn किया है, हम उसके basis पे हम activities को हम generate कर सकते हैं. और यही मैंने अपने topics में बताने के लिए कोशिश किया हुआ है. Now first is a fitness and active lifestyle. There is a two different parameters are there. First is fitness and second is a lifestyle related activities. What is the fitness and what is the lifestyle? Life is fitness. If you are doing some activities, any vigorous activities, feel any tiredness. अगर आप कोई भी activities करते हैं, आप में lecture से या practical content later on आता है, and that is called as fitness levels. And lifestyle means कि आप daily routine of task कर रहे हैं बिना थके हुए और आपको free from any disease हैं, that is called as you are doing that lifestyle activities. Now there are some points which are emphasizes on their activities. Now first is emphasizes on their given to physical literacy. Physical literacy means on the basis of cooperation, on the basis of level of confidence, on the basis of pursuit any activities, on the basis of good communications, how we achieve to learn their different type of skills. Now आपको जो participation कराना है on the basis of interest, all children को participate कराना है. Modified games हो सकते हैं, यानी manipulative type of skills हो सकती हैं, recreation type of activities हो सकती हैं, different type of aerobic form of activities हो सकती हैं और different sports हो सकते हैं जो कि individual और team games based पे भी हो सकते हैं, and different kind of physical activities which are to develop their physical fitness levels or improve their health related fitness activities, जिससे किसी एक child को improvise कर सकते हैं या
हम फिजिकल फिटनेस लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फिटनेस फॉर ऑल हम कैसे अचीव करेंगे? टू पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, यानी फिटनेस फॉर गेम्स एंड गेम्स फॉर फिटनेस का हम मोटोस बना के हम इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं, कोऑपरेशन बिटवीन द प्लेयर्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज है, जहां पर हम सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज जॉयफुल लर्निंग। जॉयफुल लर्निंग मींस कि यू हैव टू इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट देयर लर्निंग पैरामीटर्स। अगर आपका जॉय इंटरेस्ट होगा चाइल्ड्स को आपके एक्टिविटीज में डेवलप करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, या आपने जो एक्टिविटी डिराइव की है अगर आपने उस प्रॉपर इंटरेस्ट बेस से कराया है, तो वहां पर इजी वे में चाइल्ड कोई भी एक्टिविटीज को लर्न कर सकता है और उसका लर्निंग आउटकम्स डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आफ्टर दैट वी हैव टू परस्यू सम एक्टिविटीज, एंड दैट परस्यूट ऑफ एक्टिविटीज in related to some sports. The children have exposed to variety of sports before to specialization in any sports based on their choice and competency. Competition means competition level वाली activities हमें कराना है। Sports on the basis of their choice, हमें interest basis, choice basis और different age categories के according हमें sports को derive करना है। Specialization be only the students who have the sports have talent, नहीं, हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है ऑन बेसिस ऑफ देयर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, कि उसको प्रीवियस कितना डेवलप हुआ है और कितना डेवलप हमें करना है, कि स्टूडेंट्स बिगनर है, मीडियोकर है या एडवांस लेवल का है। हमें लेवल्स भी हमें परस्यूट करना है एंड वांट टू कंप्लीट देयर हायर और बिगनर लेवल्स। हमें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग्स देना है कि एकदम हायर लेवल की ट्रेनिंग्स देना है। वी हैव टू सेट अप देयर पर्टिकुलर पैरामीटर्स इन पर्टिकुलर रिलेशंस टू इन अ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। Now next is sports excellence in their path. हमें एक ऐसा pathways बनाना है जहां पर sports performance एक particular level में आके improve हो सके। And what are the part of this? कि general potential level देखना है, previous record करना है। For example, अगर आप schools में कोई भी record form करते हैं, it should be on biannually, हमें 2 बार हमें records check करना है। For example, आप weight and growth and development देख रहे हैं, यानी weight और height का structures check कर रहे हैं, तो वो भी एक record form में होना चाहिए। एंड एवरी बाइएनुअली हमें रिकॉर्ड फॉर्म में जनरेट करना है। इसके परफॉर्मेंस को भी जनरलाइज रिकॉर्ड रखना है, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हायर है कि लोअर है। आफ्टर दैट हमें जनरलाइजेशन करना है, यानी कॉमन पैरामीटर्स पे नहीं रखना है। फॉर एवरी चाइल्ड्स को हमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर चिल्ड्रन स्पेशलाइजेशन बेसिस पे हमें ट्रेनिंग देना है, जिससे परफॉर्मेंस को हम परस्यू कर सकें, आगे हम इंप्रूव कर सकें। Now all the general principles of the sports performance enhance as applicable for any other allied players, यानी specific players who applied from sufficient modification, including the concept of periodization. हमें concept of periodization को ध्यान में रख के as well as principles of sports training को ध्यान में रख के हमें pursue करना है। Now there are 3 different parameters of periodization in there. Now first is preparation phase होता है, and preparation phase also derived from 3 different parts. Now we have to periodizations को हमें check करना है कि preparatory phase में हमें general प्रिंसिपल्स को देना है, यानी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेनिंग देना है। सेकंड पार्ट में हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग देना है, एंड थर्ड प्रिपरेशन पार्ट पे हमें टेक्निक्स और टैक्टिक्स में डिटरमाइन करना है। एंड आफ्टर दैट कंपटीशन फेसेस होते हैं, जहां पर हमें प्री कंपटीशन लेवल एंड एक्चुअल कंपटीशन लेवल में हमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ ट्रांजिशन फेज जो मिनिमम 2 to 4 वीक्स का होता है आफ्टर दैट कंपटीशन, जहां पर हम स्टूडेंट प्लेयर्स को एक्टिव फॉर्म में रिकवरी प्रोसेस देते हैं और रेस्ट फॉर्म देते हैं, जहां पर प्लेयर्स के जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस को हम सेम रिगेन कर सकें, इंजरीज को हम मिनिमाइज कर सकें। नाउ नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखने जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट इज अगर आप एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज डिराइव करते हैं या एज एक्टिविटीज पैरामीटर्स को बनाते हैं। नाउ देयर आर दी 4 डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर। अगर आप नीचे से ऊपर की देखते हैं, यानी एज अप क्लास 1 to 3, 4 to 8, नाउ 9 to 10 एंड 11 and 12। अगर आप इसी एज को देखते हैं, यानी 5 to 8, 9 to 14, 15 to 16 एंड 17 to 18, क्या करना चाहिए जहां पर एज डिटरमाइन हो सम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज के लिए। नाउ फर्स्ट एक्टिविटीज या फर्स्ट क्राइटेरिया इज देयर मूवमेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमें जनरेट करना चाहिए। इट मे बी लोकोमोशन एंड नॉन लोकोमोशन टाइप ऑफ पैरामीटर्स, इट मे बी द स्टैटिक और डायनामिक पैरामीटर्स, और हमें एक्विजिशंस करना चाहिए, हमें एक्वायर करना चाहिए पर्टिकुलर फंडामेंटल स्किल्स को, जो कि एक मोटर स्किल जो हम डेली रूटीन ऑफ टास्क करते हैं वहां पर उनको इंप्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल
पुलिंग है, पुशिंग है, क्रॉलिंग है, वॉकिंग है, सिंपल टाइप ऑफ जॉगिंग है, रनिंग है। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट्स को, हमें मूवमेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिटरमाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बॉडी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस की पोजीशंस को बॉडी की, एंड एफर्ट देयर अवेयरनेस, आपके बैलेंस का पार्ट आता है जहां पर हम कितना एफर्ट लगाते हैं और हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल होती है या बैलेंस फॉर्म में होती है। आफ्टर दैट हमें इम्फेसाइज करना चाहिए इसके लर्निंग में और एंजॉयमेंट्स। अगर कोई वो लर्न कर रहा है स्किल्स, वहां पर एंजॉयमेंट पैरामीटर्स होता है जिससे वो इजी वे में डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एक्सपीरियंस को या एक्सपीरियंस लेवल्स से हम वो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स को लर्न कर सकता है। एंड लास्ट हमें जनरल फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करना चाहिए जहां पर स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का, एंडोरेंस का पार्ट्स आता है और धीरे धीरे वही चीज हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग दैट स्ट्रेंथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज, अगर हम क्लास 1 में उसको 2 रेपिटेशंस करवा रहे हैं, 2 पुशअप्स करवा रहे हैं, तो वही क्लास 2nd में जाके आपको 5 to 7 कराना चाहिए और वही 8th में जाके आप उसको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके अप टू 10 तक हम कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेंथ लेवल को हम इम्प्रोवाइज करा सकते हैं या स्ट्रेंथ लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। ना आफ्टर दैट 6th और 8th की कैटेगरीज में हम क्या करेंगे? 8th की कैटेगरीज में हम ओवरऑल एक्विजिशंस ऑफ स्किल्स करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करेंगे जहां पर एक लर्निंग पार्ट आएगा विद इन देयर एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ देयर स्पोर्ट्स, पर्टिकुलर रिलेशन से हम एक्टिविटीज को जनरेट करेंगे। आफ्टर दैट एम्फसाइज करेंगे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेंज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है कि नहीं और स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस लेवल कितना है जिससे वो फन और इन्वॉल्वमेंट कर सके। जैसे कि कोई भी आप अपनी एक्टिविटीज बनाई है, टग ऑफ वॉर इफ यू आर डिराइविंग सम रिले टाइप ऑफ एक्टिविटीज जहां पर स्टूडेंट्स लीडरशिप क्वालिटीज को भी डेवलप करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फिटनेस पैरामीटर्स को भी अचीव कर सकता है। आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फिजिकल प्रिंसिपल्स, रिलेशंस टू देयर ट्रेनिंग्स एंड सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना है। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, वहां पर सेफ प्रैक्टिस आप करा सकते हैं, इंजरी के चांसेस वेरी लेस होंगे। There is a different type of principles in there, and there is post trainings are there. For example, progression of load are there, proper warming and cooling downs are there. एक particular lesson planning में या एक आपके क्राइटेरिया में 4 different things होना चाहिए। वार्मिंग अप होना चाहिए, कंडीशनिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए, एंड लास्ट किसी भी हाल में हमें कंडीशनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग डाउन एक्सरसाइज कराना चाहिए जहां पर किसी भी एक चाइल्ड को इंजरी के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके ना। हमें कोर ऑफ वैल्यूज ध्यान रखना चाहिए, बिटवीन द रिस्पेक्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इंटीग्रेशन पार्ट आता है, कोर एंड हार्मनी आता है। यानी आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपरली फॉलो अप होना चाहिए। हर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पनिशमेंट्स दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्ड सिस्टम्स होता है। अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप कराते हैं, वहां पर किसी भी चाइल्ड्स को, किसी भी प्लेयर्स को आप इजी वे में लर्न करा सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स या सोशल पैरामीटर्स को। एंड दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्पेक्ट्स होना चाहिए बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द ऑफिशियल्स, बिटवीन द कोचेस, बिटवीन द टीममेट्स। और प्लेयर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लर्निंग पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। आफ्टर दैट हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को भी डिटरमाइन करना है, एंड दैट फिटनेस आर आपकी कार्डियोवास्कुलर टाइप ऑफ एंडोरेंस है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, मस्कुलर एंडोरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटीज है। ये सारे पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रख के हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए। ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स आर देयर जो कि एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को हमें डेवलप कराते हैं। नाउ क्लास 9th एंड 10th में या 11th एंड 12th में यही पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, एंड दैट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर्म में होते हैं जो कि एक मैनिपुलेटिव स्किल्स होती हैं। एंड दैट स्किल्स को हम इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोरिंग सिस्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्विपमेंट सिस्टम्स को भी हम मॉडिफाइड कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइप ऑफ एक्टिविटीज करा रहे हैं। ना फर्स्ट डेवलपमेंट करना चाहिए कोई एक फिजिकल एक्टिविटीज को और स्पेसिफिक स्किल्स में हमें डिराइव करना चाहिए, एंड दैट स्किल्स आर स्पेसिफिक पैरामीटर्स में होता है। फॉर एग्जांपल आप ड्रिबल्स सिखा रहे हैं कि ड्रिबल सिखाने के भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाई ड्रिबल्स है, लो ड्रिबल्स इन बास्केटबॉल्स हैं, ड्रिबल्स इन कोन्स हैं, पासिंग विद ड्रिबल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, एंड टैक्टिक्स इन पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है। एंड वन टैक्टिक्स दैट इज कॉल्ड एज 3-man पासिंग हम करा सकते हैं जिससे इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स देने की कोशिश किया। नाउ आफ्टर दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटीज जो कि डिफरेंट बेस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंट कॉम्पिटेंस लेवल पे होता है। कोई भी चाइल्ड्स को डेवलप अगर आपको स्किल्स करानी है या टैक्टिक्स डेवलप करानी है तो उसका इंटरेस्ट होना मेन थिंग्स होते हैं।
आफ्टर दैट हमें एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है एंड शुड बी ऑन सेफ प्रैक्टिस होना चाहिए। ना मेंटेनेंस ऑफ देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को हमें डिराइव करना है। एट लास्ट स्किल रिलेटेड पैरामीटर्स को भी डिराइव करना है एंड दैट स्किल पैरामीटर्स अलग अलग गेम्स में स्किल पैरामीटर्स अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू रन इन 100 meters you have to speed should be developed और उसको मेजर करने के लिए 50 meter runs है। if you have to develop endurance parameters cardiovascular endurance that is 12 minutes Cooper runs और 600 meters runs are also there। after that sports pursuit हमें करना है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पे होता है and that specialization should become on 1 or 2 games and that 1 or 2 games should be developed in particular sports and that sports every skills को develop करते हैं and every skills based on their tactics and on the basis of improvisation of their techniques। हम sports talent identifications को हम सर्च करेंगे and that identifications के थ्रू हम pursuit करते हैं। now after that sports pursuits हमें application of their different type of training competitions level होता है जहां पर हमें winning सेकेंडरी पार्ट होता है बट मैक्सिमम पार्ट हमें पार्टिसिपेशंस होते हैं। ना डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंटल टफनेस और मेंटल स्किल्स को भी हम डेवलप करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन बेसिस पे। एम्फेसाइजेस ऑन देयर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस लेवल्स को हम डेवलप करते हैं एंड दैट स्पेसिफिक फिटनेस इन रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल इन एथलेटिक्स लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। नाउ आफ्टर दैट स्पोर्ट्स एक्सीलेंस ऑफ देयर पाथवेज डिफरेंट पाथवेज होते हैं। हम कैसे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे टू द डिटरमाइंड ऑफ देयर स्पोर्ट्स प्रिंसिपल्स और एक्विजिशंस ऑफ देयर स्किल्स। now high amount of their performance on the based of their trainings and competition levels। different pre competitions and main competitions के बीच में गैप होना चाहिए जिससे competition level एकदम हायर हो सके। now focus on their one sports so that performance should be higher। आप आसानी से उनको अगर आप एक स्पोर्ट्स में फोकस करते हैं, इट मे बी द टीम गेम, इट मे बी द इंडिविजुअल गेम जहां पर परफॉर्मेंस को आप हायर करा सकते हैं। ना मैंने यहाँ पर प्ले ऑफ वैरायटी इन स्पोर्ट्स बताया, प्ले ऑफ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स बताया। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो लोअर टू हायर अगर आप परस्यूट करेंगे तो फर्स्ट इज मॉडिफाइड इन रिक्रिएशनल गेम्स, सेकंड इज बेसिक स्पोर्ट्स स्किल्स एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स एंगेजमेंट्स हमें करना है। एंड आफ्टर दैट हेल्दी लाइफस्टाइल। नाउ 3 different parameters are there। first is modified in recreational games। World Health Organization ने बोला है कि we have to participate minimum 60 minutes activities in a day। if we are participated in any modified, any recreation type of activities, any manipulative type of skills जहां पर आप easy way में 60 minutes participate कर सकते हैं। For example ड्रिबल्स के बारे में बता सकते हैं, पर्टिकुलर्स आप कोई भी गेम्स में खेल सकते हैं 60 मिनट्स। आप वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम में जाके 60 मिनट्स ट्रेडमिल्स कर सकते हैं, कार्डियोस कर सकते हैं जहां पर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे। आप योगा कर सकते हैं जिससे हेल्थ या मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स या रिक्रिएशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज में डेवलपमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे मॉडिफाइड और रिक्रिएशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज आते हैं जहां पर हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को हम अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग सम एक्टिविटीज, अगर आप पूरा फुटबॉल्स नहीं कर सकते हैं तो 3 मैन गेम्स खेल सकते हैं, 5 ग्राउंड को छोटा करके आप फुटबॉल्स की एक्टिविटीज करा सकते हैं, क्रिकेट्स खेल सकते हैं जिससे आप मैनी एक्टिविटीज को डिराइव कर सकते हैं। योगा का पैरामीटर्स आप करा सकते हैं जहां पर आप बेसिकली हार्ट में इम्पैक्ट होता है, जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं। नाउ बेसिक स्किल्स एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट्स। नाउ अगर आप 6 to 18 ईयर्स के चाइल्ड को कराते हैं तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करना है, एक पर्टिकुलर स्किल्स में हमें डिराइव करना है कि हाउ टू ड्रिबल इट, हाउ टू पास इट, हाउ टू किक इट, हाउ टू क्रॉल इट, हाउ टू रन फास्ट, हाउ टू डेवलप देयर एंड्योरेंस। if you are selected one individual game, one team games, even or 2 individual game or 2 team games, ऐसा करके आप अपने स्कूल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स को आप डेवलप करा सकते हैं। फर्स्ट आपको जो भी आपने एक्टिविटीज कराई है वो सब रिकॉर्ड फॉर्म में होना चाहिए एंड बाय एनुअली यू हैव टू चेक कि परफॉर्मेंस शुड बी इंप्रूव्ड और नॉट टू इंप्रूव्ड। एंड लास्ट में हेल्थी लाइफस्टाइल्स के बारे में हमें ध्यान में रखना है। फ्री फ्रॉम डिसीजेस हमें होना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं 60 मिनट्स एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज करते हैं जहां पर ऑक्सीजन की टेंडेंसी आप में होती है तो वहां पर चांसेस है कि मैक्सिमम डिसीज वेरी लेस होंगे। नॉर्मल रिक्रिएशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज खेलना चाहिए जहां पर हेल्दी लाइफस्टाइल्स को अचीव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां पर आप हेल्थ को परस्यूट कर सकते हैं, हेल्थ को अचीव करा जा सकता है। देयर आर सो मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर देयर। फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम्स ओबेसिटी, आपके हाइट और वेट के रेशियो को कंट्रोल करना है।
आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अस्थमा के प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पर कंट्रोल करना है इफ यू आर पार्टिसिपेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ना मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटीज बनाने की कोशिश किया है एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्टिविटीज। एंड दैट एक्टिविटीज में अगर आप ट्रैक एंड फील्ड्स कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं, इट मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक एंड फील्ड दिया है या एथलेटिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स होते हैं, और अगर आप स्कूल्स में एथलेटिक्स के हर स्कूल्स में गेम्स होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड का ग्राउंड्स होता है, तो वहां पर से कंपलसरी पैरामीटर्स डाल सकते हैं and that divides into 4 different parts are there, and first is running, second is throw, third is jumps, and fourth is walking parameters. Now running, it is a track events होता है जहां पर short distance, middle distance and long distance को आप डिवाइड कर सकते हैं, और अपने स्कूल्स पे आप शॉर्ट एंड मीडियम टाइप ऑफ एक्टिविटीज भी करा सकते हैं। इफ यू हैव गुड क्वालिटीज ऑफ एंड्योरेंस टाइप ऑफ स्टूडेंट, आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस टाइप ऑफ ट्रेनिंग करा सकते हैं। ना शॉर्ट डिस्टेंस आर 100, 200 and 400 meters आते हैं, प्लस hurdles activities भी करा सकते हैं, but hurdles maximum schools are not taking part in hurdles competitions. Now there are the two different type of relays activities are there, 4 into 100 and 4 into 400 meters are there. Now 100 and 200 these are 100, 200, 400 meters are shorter distance running are there, and relays activities also there 4 into 100 and 4 into 400 meters are there and should be modified. आप उसको modified कर सकते हैं, जैसे 4 into 200 कर सकते हैं, 4 into 50 meters कर सकते हैं, increasing decreasing relay कर सकते हैं, और गर्ल्स एंड बॉयज यानी मिक्स रिलेज भी आप कर सकते हैं, एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी आप चाइल्ड्स को करा सकते हैं, जो कि इफ यू हैव गुड क्वालिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस या एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। नाउ नेक्स्ट इज थ्रोइंग इवेंट्स है, जहां पर डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जैवलिन्स है, activities are there, and hammer throws maximum schools are not taking, and CBSEs में भी hammer throw events नहीं है ना। यहाँ पर आपको जो भी एक्टिविटीज कराना है वहां पर मॉडिफाइड जैवलिन थ्रो भी आप ले सकते हैं, इट में भी वुडन का आप यूज कर सकते हैं, और इट में भी फाइबर्स का मटेरियल के साथ भी आप कर सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को बेसिक टेक्निक्स या स्किल्स को आप लर्निंग पार्ट्स में आप डाल सकते हैं ना। डिस्कस भी डिफरेंट टाइप में आते हैं, वुडन के भी आते हैं, रबर फॉर्म में भी आते हैं, जो कि एक रबर फॉर्म एक मॉडिफाइड वेट कैटेगरीज में आता है, और ये कॉम्पिटिशंस में नहीं होता, बट आप लर्निंग पैरामीटर्स में आपको यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट जंप्स आते हैं, जो कि एक लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड ट्रिपल जंप्स होते हैं, और डिफरेंट पैरामीटर्स में आप लॉन्ग जंप्स की स्किल्स एंड हाई जंप की स्किल्स में करा सकते हैं। हर स्कूल्स में ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जंप्स यूज करा सकते हैं, और आप इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वॉकिंग पैरामीटर्स आता है। वॉकिंग एक बेसिकली एक एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज है, स्कूल्स के लिए एक मेन एम्फेसाइज होता है वॉकिंग पैरामीटर्स में, वॉकिंग स्किल्स में। नाउ आफ्टर दैट आपको इंडिविजुअल गेम्स में भी हम डेवलप कर सकते हैं। एटलीस्ट वन एक्टिविटी शुड बी चूज ऑन देयर एक्विजिशंस। नाउ फर्स्ट इज जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग एंड रेसलिंग एंड एनी मार्शल आर्ट, जो कि एक या कॉम्बेटिव टाइप ऑफ स्पोर्ट्स आप बोल सकते हो। एंड दैट टाइप ऑफ कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक ऐसी एक्टिविटीज होती है जो एक्रोबेटिक फॉर्म में होती है, जहां पर जिम्नास्टिक एक्टिविटीज आप अगर आप अपने स्कूल्स में डेवलप करते हैं, तो इट शुड बी जो लोअर क्लास से आप नियरली अबाउट 6 से लेके आप 14 ईयर्स तक जिम्नास्टिक्स को आसानी से डेवलप कर सकते हैं, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटीज लेवल ऑफ ट्रेनिंग आप करा सकते हैं। इट मे बी इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, इट मे बी मॉडिफाइड टाइप ऑफ जिम्नास्टिक एक्टिविटीज करा सकते हैं। Now there is a swimming type of activities. हर schools में 50 meters का swimming pools नहीं होगा। There is 2 different type of swimming pools are there, and one is modified and one is non-modified. One is non-modified, जो कि competition level में होता है। Now swimming 25 meters indoor और outdoors भी होता है, and 50 meters indoor swimming pools होते हैं। But national से international level में 50 meters swimming pools use किए जाते हैं। यहाँ पर swimming pools अलग-अलग basis पे कराते हैं, और इक्विपमेंट्स भी डिफरेंट बेसिस में हम चाइल्ड्स को यूज करते हैं, जो कि एक डिफरेंट पैरामीटर्स में आता है, और यहाँ पर एरोबिक एनारोबिक दोनों कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग करा सकते हैं। एंड रेसलिंग, वन ऑफ द इंडिजिनियस गेम्स ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल गेम्स आप बोल सकते हो, और डिफरेंट वेट कैटेगरीज में कराया जाता है, और हम एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज इसमें एज ग्रुप्स में हम बाउंस करके करा सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ गेम्स आर देयर, जूडो, कराटे, टाइक्वांडोस होते हैं,
जो कि हर स्कूल्स में एक्टिविटीज करा सकते हैं। आप मैथ्स में भी करा सकते हैं, विदाउट मैथ्स में भी एक्टिविटीज उसको करा सकते हैं। एक्सेस ऑफ देयर नॉलेज एंड देयर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स आता है। विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्किल्स, मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, एवरी चाइल्ड को मालूम होना चाहिए बिफोर यू आर कंडक्टिंग देयर कॉम्पिटिशंस और बिफोर यू आर गिवन दैट एनी टास्क, बिफोर यू आर गिवन दैट एनी स्किल्स, टीचिंग दैट एनी स्किल्स। नाउ मेजरमेंट्स ऑफ देयर ग्राउंड स्ट्रक्चर, मेजरमेंट्स ऑफ देयर criteria of their positions, how to check measurement structures। अगर आप किसी एक चाइल्ड को चेक कर रहे हैं इन जूडो, क्योंकि एवरी गेम्स में टाइकांडो हो गया, जूडो हो गया, कराटे हो गया, मेजरमेंट की स्किल्स होती है और मेजरमेंट के बेसिस पे उनको विनिंग किया जाता है। इसलिए मेजरमेंट क्राइटेरिया शुड बी क्लियर होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स आसानी से स्किल्स को आसानी से नॉलेजेबल कर सकते, जान सकते। Now after that, teach their team games. How we teach their team games? Foremost thing is that how जो टीम गेम्स होता है हम उसको कैसे टीच करेंगे। Now teaching their team games in different levels में हमें करना है, beginners, mediocres and advanced level में। Now teach in various type of team games in effective and efficient levels। हमें स्किल गेम्स जो हमें कराना है वो स्टेप बाय स्टेप्स कराना है। एंड आफ्टर दैट स्किल्स, जो इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं इन बिगिनर्स के लिए आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलप होगी, यू कैन यूज सम पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स एज अ कंपटीशन लेवल्स, जिससे उनकी इफेक्टिव और एफिशिएंट लेवल्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एवरी चाइल्ड को अगर हमने टेक्निक सिखाया नहीं, दे आर लर्निंग देयर फॉल्टी टेक्निक्स, आपको उसी टाइम on this spot आपको उसका rectifications करना है। Now if you are teaching them that some skills, आपको ground measurements before you are teaching आपको मार्क करके रखना है और some parameters को ध्यान में रखते हुए आपको objectives को भी set करना है कि how we teach some skills। Now sustains their interest to learning their skills on the basis of their team games, indigenous games, including their indigenous games। Now team games के साथ साथ हमें indigenous games भी सिखाने हैं। For example, खो-खो है, मलखम्ब है, कबड्डी है, योगा है। दिस आर दी सम गेम्स जहां पर हमें टीम गेम के साथ साथ हमें इंडिजिनियस गेम्स को भी एम्फसाइज करना है। एंड लर्निंग पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ड्रिबल्स सिखा रहे हैं तो हमें पहले उसको ड्रिबल्स की बताना है कि हाउ वी किक देम, हाउ वी ड्रिबल्स देम। फिर आपको कोन्स यूज करना है, फिर आपको फ्लैग्स यूज करना है, फिर डिफिकल्टी ऑफ लेवल्स इंप्रूव करना है, जिससे वो आसानी से ड्रिबल्स को सीख सके। पुशिंग, पुश पास हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ पासिंग्स हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ शटल रनिंग्स हो गया, जिससे स्पीड्स को डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें इम्प्रोवाइजेशंस करना है। ना हेल्प टू स्टूडेंट्स टू चैनलाइज देयर एनर्जी, यानी आपकी जो एनर्जीज होती हैं फॉर चाइल्ड्स की, यानी उनमें जो लर्निंग पैरामीटर्स होता है उसको इम्प्रूव करने, जिससे वो एनर्जीज या जो स्टोर की एनर्जीज होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ देयर क्वालिटीज और टीम स्पिरिट्स को इम्प्रूव करना है। कॉपरेशंस, फिजिकल लिटरेसी लेवल्स को इम्प्रूव करने, जहाँ पर कॉपरेशन हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स हो गए, इन सब को डेवलप करना है, जिससे हम इजी वे में चैनलाइज कर सकते हैं एनर्जीज को। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है। नेचर ऑफ टैलेंट स्टूडेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हमें स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाना स्टार्ट करना है। नाउ हाउ वी टीच देम द इंडिविजुअल्स। अगर हम बॉल्स को ड्रिबल करा रहे हैं तो बॉल को पहले स्टूडेंट्स को होल्ड करना आना चाहिए कि हाउ वी होल्ड देम बॉल्स। फॉर एग्जांपल, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, आपका बेसबॉल है, कि हाउ वी होल्ड दैट बॉल, हाउ वी थ्रो दैट बॉल, व्हाट आर द एंगल पैरामीटर्स, हाउ टू थ्रो, हाउ वी ड्रिबल देम, हाउ वी होल्ड टू रिलीज देम बॉल्स। सेम एज अगर आप वॉलीबॉल में आप अपर आर्म ओवर हैंड सर्विस सिखा रहे हैं तो हाउ वी toss them ball and how we correct in particular direction to hit them. Next is how we in service, अगर आप सर्विसेज को सिखा रहे हो तो how we tossing that ball और आपका रैकेट्स की पोजीशन क्या होगी और आपका हैंड्स एंड रैकेट्स यानी कोऑर्डिनेशन लेवल्स को इंप्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट इज आप ओवरहैंड पास कर रहे हैं, अंडर आर्म पास कर रहे हैं, पासिंग सिखा रहे हैं, तो दे आर द डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि हम कैसे उसको डेवलपमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम खो-खो में अगर हम जंपिंग सिखा रहे हैं, डाइविंग सिखा रहे हैं प्लेयर्स को, how we dive them childs, how we improve their childs to diving means कि coordination डेवलप करना है, इसके साथ स्पीड भी डेवलप करना है, यानी उनको फिजिकल फिटनेस लेवल को इम्प्रोवाइज करना है। मैंने पहले भी बोला है कि इफ अगर चाइल्ड ने किसी में फॉल्टी टेक्निक्स डेवलप हो रही है तो उसको मॉडिफाई करके आप उसको रिजोल्यूशन कर सकते हैं
एंड वहीं पर स्टॉप करना है। अगर इफ यू वांट डेवलप एनी क्वालिटी टाइप ऑफ टेक्निक्स तो वो रेक्टिफाइड नहीं होती है। तो ऑन दिस स्पॉट अगर हम बिगनर्स को हम करेक्ट टेक्निक्स डेवलप कराएंगे तो इजी वे में उसका परफॉर्मेंस को हम इनहेंस कर सकते हैं, यानी हायर कर सकते हैं। Now transferable of their skills, there are three different parameters of their transferable their skills, or there are different type of concepts are there. Now first is net barrier, striking barrier and territorial inversion। यानी now net exercise वो होती है जहां पर हम बॉल्स को नेट लगा के हम यूज करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप हाइट्स में नेट्स को हम डिटरमाइन करते हैं। नेट यूज किया जाता है फॉर एग्जांपल लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। जैसे बॉल है, शटल रनिंग है, एंड हमें बताना है कि अपोनेंट्स कौन सी पोजीशन में टर्न आउट हो रहा है, हमें कितना फोर्स लगाना है, एरर और फोर्स को डिटरमाइन करना है, बैरियर्स हमें यूज करने हैं कि आप हाइट्स इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। नाउ गेम्स की पोजीशंस के कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप करने ऑन द बेसिस ऑफ ऑफेंसिव, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंसिव पोजीशन। विनिंग पॉइंट्स क्या होगा आप डिटरमाइन होना चाहिए। अटैकिंग पोजीशंस क्या होगी, डिफेंसिव पोजीशंस क्या होगी। नाउ डिफेंसिव में आप अटैक कर रहे हैं तो डिफेंस का क्या क्राइटेरिया होगा, डिफेंस कैसे डिफेंसिव स्टाइल्स डेवलप करेंगे। ऐसे बहुत सारी डिफेंसिव टेक्निक्स आती हैं जहां पर शटल कॉक हो गया या टेबल टेनिस की पोजीशंस हो गया, वहां पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं यानी इंप्रूव करते हैं। एंड डिफेंस करते टाइम आपकी स्पेस क्या होगी, आपकी पोजीशन क्या होगी, आपका बेस ऑफ सपोर्ट क्या होगा, वहां पर डिटरमाइन करना है। आफ्टर दैट स्ट्राइकिंग ऑफ देयर फील्ड्स, अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं यानी स्ट्राइकिंग आपकी जो बॉल्स की पोजीशन है, फुटबॉल में हम अगर सामने से पैराबोलिक पाथ में बॉल आ रही है तो आप फील्डर्स कैसे होंगे, आपकी पोजीशन क्या होगी। सपोज कि फील्डर्स हैं, क्रिकेट में बॉल्स आ रही हैं तो आपकी कैचिंग की पोजीशंस क्या होगी, आपने कितना स्कोर किया हुआ है, एग्जैक्टली आपको स्कोर करने, आपको विन करने के लिए हाउ मच पॉइंट्स यू हैव टू रिक्वायर्ड। There is a two different parameters are there, offensive and defensive skills are there in same ball scorings are there. Now प्लेयर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि इफ यू आर कैचिंग देयर पोजीशंस तो आपकी स्पेस कितना आपका है, आप बॉल को कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर बेस ऑफ स्कोर्स, आपके स्कोर्स गेन कर रहे हैं तो कैसे स्कोरिंग पोजीशन होगी। आफ्टर डिफेंस पोजीशन भी है, डिफेंडिंग की स्पेस की पोजीशंस क्या होगी, एंड डिफेंडिंग का बेस ऑफ सपोर्ट यानी आपका प्रॉपर जजमेंट कैसा होगा बिटवीन देयर लेग्स और बिटवीन देयर हैंड्स और लेग का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, जिससे आप आसानी से आप बेस ऑफ सपोर्ट को यानी आप स्टेबिलिटीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आफ्टर द टेरिटोरियल्स यानी मार्किंग देयर डिफरेंट एरियाज, एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्ट्रक्चर्स को मार्क करना है। स्कोरिंग सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, शूटिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे, बॉल से रिलेटेड स्पेसिफिक टारगेट्स को कैसे इंप्रूव करेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट्स ओपन और टारगेट्स बेसिस पे आप ट्रेनिंग कैसे करेंगे। और ये भी दो डिफरेंट बेसिस पे हम गेम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव लेवल में। फॉर एग्जांपल 1:1 आप डिफेंसिव स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंप्रूव कर सकते हैं कि बॉल की वेट ऑफ द बॉल को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। कीपिंग देयर पोजीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल पोजीशंस को कैसे डेवलप करेंगे, वहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ यूज देयर डिफरेंट स्पेस है, क्रिएटिंग देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस है। अटैकिंग पोजीशन क्या होगी, आपकी गोल की पोजीशन क्या होगी व्हाइल यू आर यूजिंग टू गोल अचीव देयर गोल्स। मींस कि देयर आर सो मेनी गेम्स जहां पर गोल्स बेसिकली डिटरमाइंड होता है। फॉर एग्जांपल हॉकी है, फुटबॉल्स है, जहां पर गोल का एक पैरामीटर्स होता है, स्कोरिंग का एक पैरामीटर्स होता है ना। यहाँ पर डिफेंसिव पैरामीटर्स है जहां पर बॉल को भी बॉल के पोजीशंस को हम डिटरमाइन करेंगे ना। डिलेइंग पोजीशंस भी आती है, डिनाइंग पोजीशंस भी आती है, जहां पर सब टाइमिंग बेस्ड टेंडेंसी हम कराते हैं ना। मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को भी डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशंस, क्या करोगे, व्हाट टू डू। एग्जांपल्स आर देयर 1:1 रेशियोस को हम डेवलप करेंगे टेरिटोरियल बेसिस पे। एंड देयर आर द डिफरेंट वेज टू डिफेंडर पोजीशंस होती हैं जहां पर हम प्रोटेक्ट करते हैं बिटवीन देयर प्रोटेक्शंस ऑफ देयर बॉल्स, कैसे करेंगे, डिफेंडिंग पोजीशंस पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट ड्रिबल्स ऑन शेडिंग करते हैं फॉर बॉल्स में, हाउ वी डू देयर द सेगमेंट्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। हम ये लर्निंग पार्ट कर सकते हैं प्राइमरी क्लासेस पे। आफ्टर दैट सेकेंडरी एंड देयर द इंप्रूव योर इन हाई लेवल, स्टूडेंट्स शुड गेट देयर रीइंफोर्समेंट ऑफ देयर फिफ्थ, हम इंप्रूव करा सकते हैं स्किल्स को 5th to 6th क्लास में, और उसी को इम्प्रोवाइजेशन करा सकते हैं फर्दर देयर क्लासेस में या फर्दर देयर एज ग्रुप में। क्विक डिसीजन बेस्ड देयर गेम्स कराते हैं। एंड और वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्रिएशनल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, रिएक्शन टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हैं, और डिफरेंट सिचुएशन बेसिस पे हम गेम को कोरिलेट कर सकते हैं या इंटरवेंशन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं।
आफ्टर दैट हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, हम रिकॉर्ड फॉर्म में हम कैसे रखेंगे, एंड देयर आर द 4 डिफरेंट पैरामीटर्स होता है क्लास 9 से लेके क्लास 10 12 के बीच में. And first is choose one game, health and fitness their assessment and report cards, and social empowerments through their work and their actions. यानी ऐसे एक्टिविटीज करना जहां पर हम सोशल एम्पावरमेंट को डेवलप कर सकते हैं. नाउ आई कैन डिस्कस one by one. नाउ फर्स्ट इज इंडिविजुअल गेम्स आता है जो कि एथलेटिक्स एंड स्विमिंग बेसिस पे होता है. आप 9 to 12 में से एथलेटिक्स ले सकते हैं या स्विमिंग भी ले सकते हैं, जहां पर इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स आता है. एथलेटिक्स और स्विमिंग बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं पर्टिकुलर टेक्निक्स में. देयर आर सो मेनी टीम गेम्स आर देयर, टीम स्पोर्ट्स आर देयर, जहां पर इम्प्रोवाइजेशन होगा. नाउ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एज वेल एज एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पैरामीटर्स में आते हैं. सो मेनी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो कि आउटडोर एक्टिविटीज टाइप में होते हैं. एंड फॉर एग्जांपल रॉक क्लाइंबिंग्स होते हैं, मॉडिफाइड रॉक क्लाइंबिंग्स होते हैं, रिवर राफ्टिंग्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आते हैं. हेड रिलेटेड फिटनेस एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक योगा और फिजिकल फिटनेस लेवल्स को इंप्रूव करती है. योगा हो गया, जॉगिंग हो गया, एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज हो गया जो कि एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को इम्प्रूवाइजेशन कह सकते हैं. नाउ बायएनुअली यू हैव टू चेक योर फिजिकल फिटनेस असेसमेंट. आपको रिपोर्ट कार्ड रखना है. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा. अगर आपको बॉडी कंपोजिशंस को डिटरमाइन करना है तो आपको हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेक करना है, एंड बायएनुअली चेक करना है कि हाइट और वेट का कंपैरिजन यानी ओबेसिटी का कंपैरिजन बड़ा तो नहीं, जिससे एक फिटनेस लेवल को या रिपोर्ट कार्ड को हम डेवलप कर सकते हैं. आफ्टर दैट सोशल एम्पावरमेंट ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटीज होता है जो कि सोशल एक्टिविटीज में आते हैं. ऐसे बहुत सारे एनएसएस एनसीसी एक्टिविटीज आती हैं जो कि स्कूल्स चलाते हैं. फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशन हो गया, रेड ब्लड डोपिंग कैंप्स हो गए. आफ्टर दैट यू हैव टू जो डेली रूटीन्स में प्री कोविड सेशंस में एक्सरसाइजेस हो गए, पोस्ट कोविड सेशन में एक्सरसाइजेस हो गए, जिससे एक सोशल एम्पावरमेंट को हम डेवलप कर सकते हैं. ना यहाँ पर एनसीईआरटी थीम्स बेस पे 1 to 10 के क्लासेस में हमें डेवलप किया. एक ह्यूमन बॉडी का जो नेचर्स होता है, हमें उसमें कैसे स्ट्रक्चर, यानी हाइट कितनी बढ़ रही है, वेट कितना डेवलप हो रहा है, मूवमेंट अवेयरनेस वाली एक्टिविटीज हो गई, यानी आप शटल रन करा के भी यानी डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. फिजिकल फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो कि इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स पे हैं. आफ्टर दैट योगा एक्टिविटीज एंड सो मेनी योगा एक्टिविटीज आर देयर. स्टैंडिंग आसन्स हैं, लेइंग डाउन आसन्स हैं, सिटिंग आसन्स हैं. After that, food and nutrition for most factors like balanced diet क्या है. If you are taking part in activities, what type of balanced diets you have to take, what type of foods you have to take. If you are going for competition, before, during that competition, after that competition, how much foods are required. If you have some health related problems, you have to check. After that, safety and security that are there. आपको ग्राउंड स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, ऐसा डेवलप करना चाहिए जहां पर इंजरी के चांसेस मिनिमाइज कर सकें. यू हैव टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस, you have to follow some rules and regulations जो कि particularly determined है. We have to check some environments हमें develop करना, ऐसे environments create करना जहाँ पर interest basis पे activities कर सकें. Social health parameters को हमें determine करना है. Social activities को, social qualities को ध्यान में रखने में social health में हमें जाना है. अगर social में suppose pre COVID session में हमें कौन सी activities करनी थी, post sessions में हमें कौन सी activities करनी है. After that हमें orientation programs करना चाहिए जहाँ पर हम फिजिकल प्रोग्राम्स में हमें डेवलप कर सके, स्पेशली 9th and 10th में जहां पर स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन वेरी लेस होने के चांसेस होते हैं. यहाँ पर हमें बताना चाहिए इफ यू आर पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्टिविटीज, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला कि मिनिमम 60 days you have to participate activities or you have to excel some sports competitions. Its benefits some activities are there. और आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, बताना चाहिए कि दिस आर द एक्टिविटीज जो कि हमारे लिए इम्प्रूव होंगी. आफ्टर दैट कंज्यूमर हेल्थ एंड स्पोर्ट्स सर्विस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक होती है. और स्टूडेंट्स को हम इम्प्रोवाइजेशन करा सकते हैं. हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ, जो कि फ्री फ्रॉम डिजीज, कि अगर एट द एज ऑफ 8 to 16 years में अगर आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई, नाउ द chances of disease is very less. Now next it is a factors of age appropriate curriculum of their activities are there. Now design should be activities on the basis of their inter-house games are there, and that inter-house competitions should be on the basis of different parameters. Now first, अगर आप कोई भी एक curriculums बनाते हैं या माइक्रो प्लानिंग या म्यूजियम एक ईयरली प्लान बनाते हैं तो आप क्या ध्यान में रखेंगे? साइकिल प्रॉपर वार्मिंग अप स्ट्रक्चर्स, रनिंग एंड वॉकिंग का पैरामीटर्स क्या होगा,
एजिलिटी सर्कस, एजिलिटी का फैक्टर्स क्या होगा, एक्टिविटीज इन देयर रिलेटेड इन वाटर, स्प्लैश पूल्स आते हैं, मॉडिफाइड स्विमिंग पूल्स आते हैं, मॉडिफाइड स्विमिंग एक्टिविटीज आती हैं जहां पर हम चाइल्ड्स को वाटर्स की जो अफ्रेड होती है उससे हम निकाल सकते हैं, एंड वैरायटी ऑफ मेजर माइनर्स एंड रिक्रिएशनल टाइप ऑफ एक्टिविटीज जहां पर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करा सकते हैं इन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स के थ्रू। मैंने यहाँ पर एज ग्रुप्स में बनाने की कोशिश किया है जो कि 0 to 2, 2 to 7, 7 to 10 years, 11 to 14, and after that 15 to 18 years के approximately. Now how we improvisations, there are different type of activities. Now 0 to 2 years में कौन सी activities होगी, beginning for different type of skills है, different type of skills यानी modified skills हैं, beginners के skills हैं, and that skill should be on the basis of sitting है, crawling है, walking है, pushing है, pulling है. Now pushing and pulling का one of the example is tug of war है, आप नॉर्मल से थ्रेड लेके एक्टिविटीज करा सकते हैं, लोकोमोशन एंड नॉन लोकोमोशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज करा सकते हैं, यानी आप स्टैंडिंग में चाइल्ड्स को एक पुलिंग और पुशिंग भी बता सकते हैं, इंडिविजुअल यानी फेस टू फेस भी डेवलप करा सकते हैं। नाउ आफ्टर 2 to 7 years के लोकोमोशन फॉर्म ऑफ स्किल्स होती हैं जहां पर हम मूवमेंट बेस्ड यानी डायनामिक बेस ऑफ स्किल्स में हम डेवलप कराते हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग विद जंपिंग्स हो गया, फॉर एग्जांपल शटल रनिंग हो गया, मॉडिफाइड शटल रनिंग हो गया। आफ्टर दैट मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ स्किल्स होती है। नाउ मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ स्किल्स इक्विपमेंट के साथ भी हम करा सकते हैं, मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड ग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं जहां पर इजी वे में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के रिलेशंस में स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ना आफ्टर दैट स्टेबिलिटी टाइप ऑफ स्किल्स हमें कराना है जहां पर बेस ऑफ सपोर्ट को डिटरमाइन करना है, ध्यान में रखना है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन यानी बोथ द हैंड्स और बोथ द लेग्स के बेस ऑफ सपोर्ट को ध्यान में रख के हमें कोई स्किल्स को हमें इंप्रूव करना है। आफ्टर दैट 7 to 10 years में हमें हेल्थ स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवमेंट्स में डेवलप कराना है जो कि एक पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स से होते हैं। Now how we transitions of their skills on the basis of running क्या होगा, on the basis of running short running है, middle distance type of running है, long running है, it may be jogging है, it may be walking है, it may be the jumping type of activities है, standing broad jump one of the techniques है जो कि एक explosive strength को डेवलप करता है, on the spot skipping है जो कि jumping qualities को डेवलप करता है, throwing skills भी हम डेवलप करा सकते हैं, throwing skills में हम modified equipments यूज कर सकते हैं, one of the example is medicine ball throw आता है, बैकवर्ड बॉल थ्रो आता है जहां पर से थ्रोइंग पैरामीटर्स को हम डेवलप कर सकते हैं, हिटिंग पैरामीटर्स आता है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, लॉन टेनिस हो गया जहां पर हिटिंग पैरामीटर्स, स्ट्राइकिंग पैरामीटर्स और ड्रिबलिंग पैरामीटर्स को हम डेवलप कर। वन ऑफ द एग्जांपल फॉर ड्रिबलिंग इज बास्केटबॉल ड्रिबल से हमें ड्रिबल्स के लेवल को भी इंप्रूव करना है, एंड हमें इंट्रोडक्शंस देने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स जो कि एक इंडिविजुअल और टीम गेम बेस पे होती हैं, एंड इंडिविजुअल गेम्स आर एथलेटिक्स हैं, स्विमिंग्स हैं, जिम्नास्टिक्स टाइप ऑफ स्किल्स हैं जो कि इंडिविजुअल का एक पैरामीटर्स होता है और जिम्नास्टिक एक पैरामीटर्स होता है जहां पर से हम किसी भी चाइल्ड्स के मूवमेंट्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स में। नाउ नेक्स्ट इज टीम्स एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है, एंड फॉरमोस्ट है योगा का स्ट्रक्चर्स, हमें योगा यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ योर बॉडी को डेवलप करना है जो कि आसन होता है, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, इंप्रूव करना है जिससे स्टूडेंट्स 7 to 10 years में इजी वे में डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स। आफ्टर दैट 11 and 14 years की टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, एंड दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स है, एंड इंक्लूडिंग हमें ओलंपिक बेस्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल 400 मीटर ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक्स करना है कि मॉडिफाइड 200 मीटर ट्रैक्स हमें डेवलप करना है, शुड बी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, एंड ट्रेडिशनल गेम्स आर खो-खो हो गया, कबड्डी हो गया, रोप मलखंब हो गया, मलखम्स हो गया, स्कीपिंग हो गया, ट्रेडिशनल गेम्स, मॉडिफाइड गेम्स आते हैं, मैनिपुलेटिव गेम्स आते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बेसिस पे होते हैं, एंड रिक्रिएशन गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट सो दैट हम स्टूडेंट्स को एक्विजिशन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ देयर फिटनेस लेवल्स है जो कि स्पीड है, स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज एंड सो ऑन है। आपका बॉडी कंपोजिशन फैक्टर्स भी इसमें आते हैं। For example, cardiovascular endurance, how we check on 600 meters और 12 minutes run and walk test आता है जिससे हमें किसी भी चाइल्ड को हम चेक कर सकते हैं कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम है कि नहीं। आफ्टर दैट हमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी किसी चाइल्ड को बताना है कि व्हाट आर द हेल्थ फैक्टर्स एंड व्हाट आर द न्यूट्रिशन जो कि आपके गेम से रिलेटेड इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, आपके डेली रूटीन से आपको हेल्थ में कौन सा फैक्टर्स डिटरमाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन देयर
all type of nutritional factors. Now age parameters आएंगे, choice of their individual आएगा, different type of activity based पे हम nutrition को determine करते हैं. Now outdoor education, हमें child को बाहर ले आके बताना चाहिए what type of activities are there. Now one of the example is anatomy lab, आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि what are the bone structures are there, जहाँ पर हम outdoor educations के बारे में बता सकते हैं. हम NSS NCC एक्टिविटीज करा सकते हैं जहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज में आता है. सोशल अवेयरनेस के बारे में बता सकते हैं. Now after that हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविटीज को हमें डिटरमाइन करना है जो कि 14 to 18 years में आता है. एंड फॉर मोस्ट वेकेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज एटलीस्ट टू इंडिविजुअल गेम्स एंड 2 टीम गेम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप इजी वे में एनी 2 गेम्स आप 9th में, एनी 2 गेम्स आप 10th में, 4 गेम्स आप डेवलप कर सकते हैं और परस्यूट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को. ना एक्सीलेंस ऑफ पाथ, यानी आप कोई भी एक गेम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू. Now just I give one example related to some type of activities are there on the basis of ranging their experience and experience of activities are there. Now for most activities are there recreation type of activities, team games, individual and indigenous type of activities. And what are the based, क्या based होगा, and based on the basis of their step, space, time, equipments and peoples are there. Now first parameters are recreation type of games are there, जो कि एक मॉडिफाइड होता है. अगर आप देखोगे इसमें चेजिंग वाला गेम्स इसमें दिखाया गया है कि हाउ वी पिक अप देयर गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ अगर कोई चाइल्ड इधर उधर मूव करता है तो इसी वे में वो पिक कर सकते हैं. यहीं पर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स आप बना सकते हो. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैक रेस आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिबल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल थ्रोज आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइकिंग देयर इक्विपमेंट्स आता है. नाउ नेक्स्ट इज टीम गेम्स आते हैं जो कि एक लीडरशिप क्वालिटीज, कॉपरेशन, फिजिकल लिटरेसी को डेवलप करते हैं. इंडिविजुअली टीम गेम्स में काफी कॉपरेशन, लर्निंग पैरामीटर्स आता है जो कि एक इंडिविजुअल के गेम्स को एक्सेल करते हैं. आफ्टर दैट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी होते हैं जो कि एक कॉम्बेटिव गेम्स, एथलेटिक्स होता है, स्विमिंग बेसिस पे होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल परस्यूट्स भी करते हैं. आफ्टर दैट इंडिजिनियस गेम्स आते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल गेम्स बोला जाता है और इंडिया ने इसको डेवलप किया होता है. वन ऑफ द एग्जांपल इज खो खो दिया है. नाउ वन ऑफ द खो खो इज वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन टाइप एंड एजिलिटी एज वेल एज स्पीड टाइप ऑफ गेम्स आर देयर, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स को हम डेवलप कर सकते हैं. नाउ फॉरमोस्ट स्टेप हमें ध्यान में रखना है, स्कूल में अगर आप कोई भी चीज मॉडल डेवलप करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस आर देयर. फर्स्ट इज स्पेस, टाइम, इक्विपमेंट्स एंड पीपल्स. नाउ स्पेस आर देयर कि आपने ग्राउंड स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया है, कौन सा गेम स्ट्रक्चर्स एनवायरनमेंट्स पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्पेस यू आर यूजिंग, हाउ यू मार्क देयर स्पेस. आपका जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है मॉडिफाइड है, रिक्रिएशन बेसिस पे है या मैनिपुलेटेड टाइप पे है. नॉट टाइम फैक्टर्स है मेनली कि इफ यू आर गिवन दैट टाइमिंग्स 40 मिनट्स की क्लास है, 1 आवर्स की क्लास है, एंड should be complete your achieve your learning objective on the basis of their timings. Now next equipments है, equipments on the basis of their competency level पे आपको equipment select करना है. On the basis of competition equipments बहुत types के आते हैं, modified आते हैं, competition levels के भी आते हैं, manipulative भी आते हैं जहाँ पर easy way में learnings करा सकते हैं. And after that peoples, आप कौन से level के childs को training दे रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट दे रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज मिक्स दे रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप है, ये सारा चीज ध्यान में रख के आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान्स को आपको सेट करना है ना. यहाँ पर खेलो इंडिया वन ऑफ द प्रोग्राम्स 2017-18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाइड किया था एंड गेम वाइज भी उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ अभी एट प्रेजेंट सो मेनी गेम्स में अलग अलग कॉम्पिटिशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल गेम्स खेलो इंडिया है, यूनिवर्सिटी लेवल खेलो इंडिया प्रोग्राम्स है. ना खेलो इंडिया प्रोग्राम्स एक ऐसा डिराइव है जहां पर फिटनेस लेवल को अचीव किया जा सकता है. नॉट ओनली द विनिंग देयर मेडल्स, you have to participate on their Khelo India program so that you can achieve their tasks. Now next is yoga hai. Yoga is there and International Yoga Day is derived from Prime Minister Narendra Modi is there. Now yoga एक पैरामीटर 21 जून को योगा डे बनाया जाता है एंड योगा डे अलग अलग योगा जो होता है अलग अलग पैरामीटर्स पे होता है, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेसिस पे इसको डिराइव किया गया है ना. अगर आप योगा देखने जाओगे तो योगा में भी डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं, स्टैंडिंग आसन आते हैं, सिटिंग आसन आते हैं, लेइंग डाउन आसन आते हैं, मेडिटेशन आता है,
प्राणायाम्स आते हैं, क्रियास आते हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस में आप चालू कर सकते हैं। अपर प्राइमरी मींस 9 to 10th एंड 11 to 12th में आप कौन सी एक्सरसाइज आप करा सकते हैं। ना एनसीईआरटी बुक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ आसन स्पेसिफिक बेसिस पे दिए हुए हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इंप्रूव कर सकते हैं। ना योगा हेल्थ जो होता डिराइव कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सूर्य नमस्कार आसन, सूर्य नमस्कार ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आसन पैरामीटर्स होते हैं। ना सूर्य नमस्कार का रेपिटेशंस आप इंप्रूव कर सकते हैं, रेपिटेशंस आप बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका फिटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं। ना मिनिमम आप 5 आसन, आयुष मंत्रालय बोलता है कि मिनिमम 15 मिनट्स आपको आसन करना है, जिससे आप फिजिकल फिटनेस लेवल को आप डेवलप कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिजिकल फिटनेस लेवल को अचीव करना होने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आसन होते हैं। आफ्टर दैट मेडिटेशन टाइप ऑफ आसन आते हैं, फॉर एग्जांपल अलोम विलोम है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रियास होते हैं, सेतु बंद आसन होते हैं। नाउ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरीज में डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बेसिस पे भी डेवलप करने के आसन होते हैं, जहां पर से आप मेडिटेशंस के थ्रू, आसन के थ्रू अपने पर्सनालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। ना लाइफ स्टाइल रिलेटेड मैनेजमेंट्स को करने के लिए यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट को दूर करने के लिए यानी हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आसन होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्दी लिविंग यानी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज को भी दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आसन होते हैं। भुजंग आसन हो गया, अर्धमत्स्येंद्र आसन हो गया, सेतुबंध आसन, मैंने आपको एग्जांपल दी। एंड आफ्टर दैट मेडिटेशन टाइप ऑफ एक्सरसाइज यानी योगा में कंसंट्रेशन टाइप ऑफ आसन। नाउ मैंने यहाँ पर 6 to 12 इयर्स का फिटनेस प्रोग्राम बताया है, जो कि एक आयुष मंत्रालय का, एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय का बताया गया है। एंड दैट आसन ऑन द बेसिस ऑफ कैसे आप उसको डिटरमाइन करेंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ आसन इज 15 मिनट्स मिनिमम ड्यूरेशन करना चाहिए ना। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो मिनिमम 2 राउंड्स आप कर सकते हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 मिनट्स। ना स्टैंडिंग पोज, सिटिंग, प्रोन, सुपाइन पोजीशन में आसन आप कर सकते हैं, यानी 4 डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप आसन कर सकते हैं ना। वन ऑफ द एग्जांपल इज ताड़ासन है ना। ट्रंक के ट्विस्टिंग टाइप ऑफ आसन होते हैं, त्रिकोण आसन होते हैं। आप यही रेपिटेशंस 2 टाइम्स कर सकते हैं, और अगर आप मल्टीप्लिकेशंस करेंगे टोटल 8 मिनट्स का ड्यूरेशन हो सकता है मिनिमम। आफ्टर द सिटिंग आसन होता है, जो कि कैमल पोज यानी उत्तरार्ष आसन होते हैं, पश्चिमोत्तरासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन होते हैं विद द ड्यूरेशन ऑफ 2 मिनट्स, 2 राउंड्स यानी 8 मिनट्स। आफ्टर दैट धनुरासन प्रोन पोजीशन पे, मकर आसन प्रोन पोजीशन पे, जो कि एक 2 मिनट्स, टोटल ड्यूरेशन ऑफ 8 मिनट्स। आफ्टर दैट सुपाइन पोजीशन पे है, अर्ध हलासन है, पवन मुक्त आसन है, शवासन है। एंड दीज आर द आसन अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो टोटल आसन आप स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन में टोटल 4 आसन होते हैं। आप इनमें से कोई भी एक आसन लेके आप अगर आप 2 मिनट का पूरा राउंड करते हैं, 2 राउंड्स करते हैं, टोटल 8 मिनट का ड्यूरेशन होता है। आफ्टर दैट आप प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रह्मरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम आसन होता है। ब्रह्मरी प्राणायाम में हमिंग पोजीशंस होती है, जो कि 2 राउंड्स यानी 2 मिनट से अप्रोक्सीमेटली लगता है। आफ्टर दैट ध्यान वाला आसन है, जो कि एक फोकस यानी ब्रीदिंग कैपेसिटीज को डेवलप करने के लिए करते हैं, एंड दैट इज आप 2 मिनट्स में कर सकते हैं, एंड दैट इज टोटल ड्यूरेशन इज 15 मिनट्स अगर आप पूरा टोटल ड्यूरेशन देखते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच आई हैव टू showing to you. Now after that we have to go 3 different type of parameters, that is aerobic, muscular strength and bone strengthening type of exercise are there. Now if you go aerobic form of exercise 60 minutes in each day, आपको 60 minutes minimum करना है in a form of moderate and vigorous type of trainings. Now first is different games में different type of moderate training हो सकती है, एंड एग्जांपल्स बेस्ड ट्रेनिंग है, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है, ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, हाइकिंग है, हॉर्स राइडिंग है, रनिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन मूविंग है, लॉन मूविंग है। विगरस फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज है, टीम गेम्स है, इंडिविजुअल गेम्स भी आप डेवलप कर सकते हैं। बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, साइकिलिंग है, जंप रोपिंग है, मार्शल आर्ट है, रनिंग है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फुटबॉल है एंड सॉकर है। Now after that you can go for muscle strengthening type of activities, and in a day में आप 3 बार कर सकते हैं, यानी alternate days कर सकते हैं आप, and 3 days per week में आप कर सकते हैं on the basis of gymnastics है, lifting their weights है, different type of bar exercises है, equipments है, pull ups है, push ups है, equipment के साथ भी है, rope है, tug of war type of activities, and after that alternate basis पे, यानी आप एक दिन मसल्स में, एक दिन बोन वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। फुटबॉल है, हॉपिंग है, जंप रोप है, मार्शल आर्ट है, टेनिस है, ट्रैक एंड फील्ड यानी रनिंग हो गया, मस्कुलर स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्किपिंग एंड स्विमिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी। ना यहाँ पर एंडोरेंस टाइप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, 3 डिटरमाइन किया है एंडोरेंस।
related activities, strength related activities and flexibility activities. नहीं, what are type of activities? Endurance 800 meter runs है, यानी मीडियम टाइप ऑफ एंडोरेंस है. ब्रिस्क वॉकिंग एंडोरेंस है, 60 मिनट्स आप वॉक कर सकते हैं. आफ्टर दैट क्विक एयर पंचेस हैं, यानी आप एंडोरेंस टाइप ऑफ एक्टिविटीज है. रिले टाइप ऑफ एक्टिविटीज है जो कि कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज को डेवलप करता है. एंडोरेंस और स्पीड दोनों है. आफ्टर दैट वॉकिंग है होता है जो कि मस्कुलर एंडोरेंस को डेवलप करता है. नाउ आफ्टर दिस स्ट्रेंथ है, क्रॉलिंग है, प्लैंक्स है, पुशअप्स है, स्क्वाट से ही आप नंबर में इंप्रूव कर सकते हैं, यानी आपने एक दिन 10 किया तो फिर 12 पे, यानी रेपिटेशंस में आप कर सकते हैं. आफ्टर दैट फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ एक्टिविटीज है, फॉरवर्ड रोल, बैकवर्ड रोल, स्ट्रेचेस हैं. नाउ चाइल्ड्स पोजेस हैं, नीज पे टचेस हैं. एग्जांपल्स हैं, आप स्टैटिक और डायनामिक बेसिस में भी आप एक्टिविटीज कर सकते हैं जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक्टिव और पैसिव बेसिस पे भी फ्लेक्सिबिलिटीज को आप बढ़ा सकते हैं. Now what type of participation, sports participation कैसा होगा? इंट्रामोल्स एंड एक्सट्रामोल्स बेसिस पे हम करते हैं. एंड इंट्रामोल्स को आप डिफरेंट लेवल्स में आप कर सकते हैं. एवरी ईयर्स इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस को करा सकते हैं. नाउ इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस क्लास वाइज, एज ग्रुप वाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफाइड एज ग्रुप वाइज करा सकते हैं. और गेम को भी आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, स्कोरिंग सिस्टम मॉडिफाइड कर सकते हैं. एनुअल स्पोर्ट्स डे कराना है, नेशनल स्पोर्ट्स डे में आपको सम एक्टिविटीज करने हैं. फॉर एग्जांपल आप योगा के एक्टिविटीज करा सकते हैं. नेशनल स्पोर्ट्स डे में आप 7 डेज टाइप ऑफ एक्टिविटीज करा सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स इंप्रूव कर सकते हैं. फिटनेस इंडिया एक्टिविटीज करा सकते हैं. एवरी मंथ, एवरी डे आप सम एक्टिविटीज करा सकते हैं. इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. नाउ फॉर मोस्ट थिंग कि इंटरनेशनल योगा डे जो 21st ऑफ जून पर आता है, वहां पर आप पूरे होल स्कूल्स को एक लेके डिफरेंट टाइप ऑफ आसन्स की आप ट्रेनिंग करा सकते हैं. आफ्टर दैट एक्स्ट्रा मोल्स जो आउटसाइड एक्टिविटीज होती है जो कि इंटर स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, नेशनल, एसडीएफआई, खेलो इंडिया प्रोग्राम्स आते हैं जो कि एक एक्स्ट्रा वर्ल्ड प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं. आफ्टर दैट मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ स्किल्स या कॉम्पिटिशंस होते हैं जो कि एक डिफरेंट पार्टिसिपेशन में डेवलप होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एडोलेसेंस इश्यूज को हमें ध्यान में रखना है, चाइल्ड्स की क्वालिटीज को ध्यान में रखना है. नाउ एडोलेसेंस सो मेनी प्रॉब्लम्स आते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गया, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, लर्निंग पैरामीटर्स आते हैं. चाइल्ड्स के लेवल को ध्यान में रख के हमें डेवलप करना है. हेल्दी एंड वेलबींग को डेवलप करना है. ना सोशल कॉजेस यानी ग्रुप कोहेरेंस को भी ध्यान में रखना है कि इंडिविजुअल कोहेरेंस, ग्रुप कोहेरेंस को डेवलप करना है. बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, enhance their procedures and after that reduce their pressures. Adolescence एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है जहां पर प्रेशर एकदम हायर होता है, तो स्टूडेंट्स को ऑलवेज काउंसलिंग करके रिड्यूस जो उनका प्रेशर होता है उसको लेवल को हमें डाउन करना है, जहां से हम स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस या कॉम्पिटिशंस के लेवल को हम इंप्रूव कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द राइट एज टू परस्यू देयर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस? देयर आर द डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जहां पर हम एज कैटेगरीज को हमें ध्यान में रखते हैं. मैंने एग्जांपल देने की कोशिश किया है. आर्चरी हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, जंप इवेंट्स हो गया, थ्रो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फील्ड इवेंट्स है, फुटबॉल है, जूडो है, शूटिंग्स हैं, सॉकर्स हैं एंड स्क्वैश एक्टिविटीज हैं. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप्स हैं. जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे स्पेशलाइजेशन पार्ट्स भी डेवलप होता जाएगा. जैसे आर्चरी है 12 to 14 इयर्स में हम एज स्टार्ट कर सकते हैं. एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइजेशन 16 to 18 इयर्स कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू हम परफॉर्मेंस को हाई अप कर सकते हैं. एट द एज ऑफ 23 to 30 इयर्स में हायर कर सकते हैं. स्प्रिंटिंग हम डेवलप कर सकते हैं 10 to 12 इयर्स में. 14 to 16 स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. एज ग्रुप में हम 20 to 16 इयर्स को हम डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल शूटिंग एरियाज हैं जहां पर हम इंडिविजुअल को हम 12 to 15 इयर्स में डेवलप कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज कर सकते हैं 12 to 17 to 18 इयर्स में. और परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल लेवल में हम करा सकते हैं वो 20 to 30 इयर्स में है. ना इंडिविजुअल गेम्स में हम डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्विमिंग है, यहाँ पर हम एज पैरामीटर्स को डिटरमाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस सेशंस होता है जो कि एक 7 to 9 इयर्स में हम बेसिकली कर सकते हैं. 11 to 13 इयर्स में हम डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. हम एज पैरामीटर्स को हम हायर कर सकते हैं जहां पर 18 to 20 इयर्स में आता है. सेम है टेबल टेनिस में 8 to 9 इयर्स में हम डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 13 to 14 इयर्स एक्विजिट कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के थ्रू, और 20 to 25 इयर्स में हायर कर सकते हैं. ना हम जिम्नास्टिक्स जो हम 6 to 8 इयर्स है, लोअर एज कैटेगरी 6 to 8 इयर्स होता है. और आफ्टर दैट 9 to 10 इयर्स में हम स्पेशलाइज कर सकते हैं और मिनिमम 14 to 18 इयर्स में हम उसको स्पेशलाइज कर सकते हैं फॉर वुमेन के लिए. आफ्टर दैट हम मेन में हम 8 to 9 इयर्स कर सकते हैं. बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं. एडवांसमेंट ऑफ स्किल्स हम 14 to 15 इयर्स कर सकते हैं. आफ्टर दैट हम 20 to 25 इयर्स में हायर परफॉर्मेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ एफटीटी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज.
व्हाट इज द एफटीटीज, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। हमें ध्यान में रख के हमें किसी भी लेवल ऑफ कॉम्पिटिशंस को हमें डिराइव करना चाहिए। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी आर द फ्रीक्वेंसीज, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट कि किस रेपिटेशंस या किस फ्रीक्वेंसी में हमें किसी चाइल्ड को रेपिटेशंस करना है, किस फ्रीक्वेंसी में हमें डेवलप करना है। व्हाट आर द इंटेंसिटी, किसी भी बेसिस पे हमें ट्रेनिंग देना है, इट शुड बी मीडियम, इट शुड बी लो, इट शुड बी मीडियम, इट शुड बी हायर। यानी इंटेंसिटी अगर 80 to 90 होगी यानी रेपिटेशन 1 और 2 टाइप होगा। now ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, अगर मीडियम हम ट्रेनिंग कराएं तो ड्यूरेशन 1 और 2 होगा, अगर एडवांस कराना है वही 7 to 8 टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा, यानी उसका टाइमिंग ड्यूरेशन हमें फिक्स करना है। एंड टाइप ऑफ मेथड्स, बिगनर्स में कौन सा होगा, एडवांस मीडियम में कौन सा होगा, एडवांसमेंट ऑफ ट्रेनिंग कौन सी होगी, ये भी हमें ध्यान में रख के हमें एफटीटी को ध्यान ट्रेनिंग डिराइव करना है। मैंने एग्जांपल देने की कोशिश किया है कि व्हाट आर द एजेस, अंडर 6 to 8 हम वन कॉम्पिटिशन एक्विजिशन करेंगे, वन सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मिनिमम ड्यूरेशन 60 मिनट्स होना चाहिए। नाउ अंडर द 9 to 10 वन कॉम्पिटिशन हम एक्विजिशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन 1 होगा, इन 75 मिनट्स हमें ट्रेन कराना है। एट द एज ऑफ 11 to 12 इयर्स वन कॉम्पिटिशन शुड बी डिटरमाइंड, 2 सेशन हम करा सकते हैं और 75 मिनट्स हम कर सकते हैं। 75 मिनट्स 2 सेशंस, यानी हम 35 मिनट्स का हम सेशन करा सकते हैं और इट मे बी 75 मिनट्स का भी हम 2 सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट 13 to 15 इयर्स हमें वन टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन हमें डेवलप करना है एंड 2 प्रैक्टिस सेशन शुड बी 90 मिनट्स का होना चाहिए। ना मास पार्टिसिपेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, हमें मास पार्टिसिपेशन को डेवलप करना है। मैंने बताया कि सोशल टाइप ऑफ क्वालिटीज यानी एनएसएस को डेवलप करने के लिए हम साइक्लिंग एक वन ऑफ द पैरामीटर्स होता है जहां पर से मास पार्टिसिपेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। वन ऑफ द एक्टिविटीज इंट्रामोरल कंपटीशन दैट इज टग ऑफ वॉर, जहां पर हम स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग एज ग्रुप में डिटरमाइंड हो रहा है, डेवलप हो रहा है कि हो रहा है। आफ्टर दैट हम लोअर लेवल में हम 6 to 8 तक या 1 to 5 तक हम वन ऑफ द एग्जांपल इज डॉज बॉल है, जहां पर स्टूडेंट्स का रिस्पांस टाइम को हम इंप्रूव करते हैं कि हाउ टू क्विक रिस्पांस व्हेन वी आर थ्रोइंग दैट बॉल एंड व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट आर द एक्यूरेसी ऑफ थ्रोइंग इन डॉज बॉल वी हैव टू यूज। आफ्टर दैट मास ड्रिल एक्टिविटीज होती है जो कि हम वीक में एक बार कराते हैं, जिससे एक मसल्स एंड बोन की टेंडेंसी को इंप्रूव कराता है और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहेंस होता है। आफ्टर दैट वन ऑफ द एक्टिविटीज चेस टाइप ऑफ एक्टिविटीज है जो कि एक मेंटल स्टेटस या मेंटल टफनेस को डेवलप करती है। एंड वन टाइप ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन दैट इंडिजिनियस टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज खो-खो टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, जो कि हम खो-खो हो गया, मलखम हो गया, योगा टाइप ऑफ एक्टिविटीज है। नाउ नेक्स्ट मास पार्टिसिपेशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया, यानी यहाँ पर कबड्डी का एग्जांपल दिया है जहां पर से टीम स्पिरिट्स को डेवलप किया गया है। आफ्टर दैट एवरी ईयर आपका एनुअल स्पोर्ट्स कंडक्ट करना है जो कि इंटर हाउस कॉम्पिटिशन बेसिस पे होता है और पर्टिकुलर एज कैटेगरीज पे डिटरमाइंड होता है। टीम गेम्स में है ऑलवेज प्लेयर्स को इंटर हाउस कॉम्पिटिशन यानी एज वाइज, ग्रुप वाइज, हाउस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं और मॉडिफाइड गेम्स में आप डेवलप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोशल एक्टिविटीज भी डेवलप करना है जहां पर सब सोशल पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स देना है। नाउ नेक्स्ट इज, मैंने ट्रेडिशनल गेम्स बताया है, वन ऑफ द मलखम की क्वालिटीज बताई है। मलखम इज वन टाइप ऑफ इंडिजिनियस टाइप ऑफ गेम्स आर देयर। इन 2013 मध्य प्रदेश को सबसे पहले ने मलखम को रजिस्टर किया। आफ्टर दैट 2017 में 20 स्टेट्स ने मलखम को अप्रूव किया फॉर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस लेवल के लिए। मलखम वन टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, वन जिसमें हम योगा टाइप ऑफ एक्टिविटीज, रोप टाइप हम एक्टिविटीज और वन ऑफ फिक्स ग्रिप यानी आप एक फिक्स ग्रिप यानी जो हम रेसलिंग में यूज करते हैं वो टाइप के हम एक्टिविटीज हम करा सकते हैं जिससे हम इंडिजिनियस गेम्स को प्रमोट कर सकते हैं। ना एक्टिव क्लासरूम, हम एक्टिव क्लासरूम कैसे बनाएंगे? ना पर्टिकुलर चाइल्ड्स के जो रनिंग है या डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस में हमें ट्रेनिंग कराना है, हाउ भी फास्ट इसकी स्पीड को चेक करना है। एक्सेलरेशन हमें स्टेशनरी पोजीशन यानी 50 मीटर्स अगर हम कराना है तो स्टेशनरी पोजीशन में वो कितना मूवमेंट करता है, हम इसको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट जंप यानी आप लैंडिंग करते हैं तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट कैसा होगा यानी स्टेबिलिटी पोजीशन कैसी होगी। नाउ इफ यू आर गिवन दैट ट्रेनिंग्स ऑफ जेवलिन एंड डिस्कस, आपका फोर्स, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपका प्रोजेक्टाइल और आप कितना फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं वो आपको डिटरमाइन करना है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग कराना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन एंड स्पीड बेसिस पे एंड हाउ वी रिएक्ट, आपका रिएक्शन कैसा होगा उस पर डिटरमाइंड होगा। हेल्थ पैरामीटर्स भी ध्यान में रखना है कि कार्डियोवैस्कुलर में कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, यानी हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का आपका पैरामीटर्स क्या होगा।
आफ्टर दैट स्कोरिंग सिस्टम इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में जस्टिफाइड होना चाहिए कि टोटल स्कोरिंग, एवरेज स्कोरिंग एंड काउंटिंग क्या होगी। ना वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड टाइप ऑफ जो कि हम स्मॉलर चाइल्ड्स को हम कराते हैं 1 to 2 में, जो कि स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन हो गया, कंपटीशन कराना है और इंटीग्रेट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट से। आप क्या बीएमआई स्ट्रक्चर्स बनाया तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ योगा का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी यानी मीजोमॉर्फी एंडोमॉर्फी स्ट्रक्चर्स को आप डिराइव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्री कोविड सेशंस में हमारी ट्रेनिंग कैसी थी, फिटनेस लेवल को हमने कैसे इंप्रूव किया। ऑन द बेसिस ऑफ मैंने एग्जांपल्स बताए हैं कि 4 डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर, प्राणायाम, स्टैंडिंग पोस्चर्स, एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज जो आपकी आप घर में कर सकते हैं, एंड सीटेड पोस्चर्स यानी बैठ के भी आप आसन कर सकते हैं, जो कि एक कैप्सूल फॉर्म में आप ट्रेनिंग करा सकते हैं। एंड मिनिमम 30 to 40 मिनट्स इन अ डे आप ट्रेनिंग करने से आपके कार्डियोवास्कुलर यानी आपका हेल्थ बेनिफिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ खेलो इंडिया प्रोग्राम्स में को ध्यान में रख के टोटल 12 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के खेलो इंडिया को डिराइव किया गया था। प्ले फील्ड्स की क्या सिचुएशन होगी, व्हाट कम्युनिटी कोचिंग सेंटर्स आर देयर टू डेवलप की स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट आपका नेशनल लेवल्स क्या होगा, स्टेट लेवल में खेलो इंडिया का क्या रोल होगा, व्हाट आर द सेंटर्स आर देयर इन स्टेट लेवल्स, एनुअल कॉम्पिटिशंस कितनी बार होंगे, वन टाइम होगा कि साल में 2 बार होगा, हाउ वी सर्च देयर टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस इफ वी आर कंडक्टिंग देयर कॉम्पिटिशंस। नाउ यूटिलाइजेशंस होगा, अपग्रेडेशन ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे यानी ग्राउंड इक्विपमेंट्स हो गया, ग्राउंड स्ट्रक्चर्स हो गया, हाउ वी मॉडिफाइड। नाउ सपोर्ट हमें खेलो इंडिया प्रोग्राम्स ऑलवेज सपोर्ट्स फ्रॉम नेशनल, स्टेट्स, regional levels so that students can improve or excel their performance. Physical fitness level को हमें biannually check करना है through खेलो इंडिया एप्स के थ्रू। Now women participations को हमें improve कराना है जिससे maximum women का participation develop हो सके, improve हो सके। Promotions of their disabilities and children with special needs और disabilities, Paralympics, Special Olympics को promote करना है। Sports for Peace of India यानी जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज जहाँ पर स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होते वहां पर इंप्रूव करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर रूरल एंड इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, जो कि एक खो खो, कबड्डी और इंडिजिनियस रोप, मलखम, स्किपिंग्स आते हैं जो कि इंप्रूव करना है, डेवलप कराना है। एंड देयर आर द डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर। नाउ आफ्टर दैट क्वांटिफाई देयर फिजिकल फिटनेस लेवल्स, देयर आर द 2 डिफरेंट पैरामीटर्स में हम चेक कर सकते हैं, हेल्थ रेटेड एंड स्किल रेटेड फैक्टर्स आर देयर। कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटीज आर फैक्टर्स इन related to health related fitness. After that, skill related fitness, power, speed, agility, balance, coordination and reaction times are there. All the 10 factors, all the 11 factors के every test are there. आप students को आसानी से assess कर सकते हैं different their parameters. Now flexibility में static and dynamic flexibility साथ में PNF बोलते हैं, proprioceptive neuromuscular facilitation. Body composition यानी height and weight को आप comparison कर सकते हैं। Now every schools में खेलो इंडिया programs जो दिया गया है वो 5 to 8 में BMI स्ट्रक्चर्स यानी हाइट और वेट में फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है, बैलेंस एबिलिटीज को चेक करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड प्लेट एबिलिटी टेस्ट है। 9 to 18 इयर्स में वेट पैरामीटर्स यानी स्पीड, अदर फैक्टर्स, स्पीड है 50 मीटर्स रन, 60 मीटर्स रन एंड वॉक यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को इफेक्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रीच टेस्ट होता है, कोर यानी एब्डोमिनल टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल कलअप जो 30 सेकंड्स में करते हैं। एंड आफ्टर दैट मस्कुलर स्ट्रेंथ जो पुशअप्स भी 2 तरीके से होते हैं, मॉडिफाइड एंड completely modified push-ups and pull-ups होते हैं। Now long term short term acquisitions होते हैं जो कि physical active literacy basis पे होते हैं। एंड अगर आप lower to higher देखेंगे, physical literacy based on their active start, fundamental base starts and on after that learning training centers में आते हैं। Now active lifestyle on the basis of training their child, learning their competency based, and after their competency particular trainings are there, and after that you have to training winning participation on there. It should be developed on their fundamental characteristics, fundamental sports skills they are there, building of their capabilities there on the basis of their physical and mental structures. And at last, you have to achieve their high performance if you are training on particular games and sports. Now, next is how we success on their parameters. Now, first parameters is participation of their games and sports and particular structure. It may be intramural, it may be the extramural activities. Now, basic knowledge of understanding in their particular games and sports, how we explain, you have to knowledge the history of their sports, rules and regulation you have to sports, techniques of their sports, tactics of their sports. Now, every skills, minimum 1 games के आपको 6 to 7 skills आने चाहिए जिससे आप promote कर सकते हैं in particular skills में. Now, motivation on the basis of their
intrinsic and extensive motivation. Now, internal motivations on the basis of their goal support, and after that influence, that is called as external factors are there. And so many external factors are there: equipments, prize money, awards, medals, certificates, trophies, जो कि एक internal and external factors को improve करते हैं. How we improve their performance on the basis of competition levels को improve करके, self analyze करके, skill levels को improve करके. After that, team spirits are there. How we develop team spirits on the basis of their development of their confidence, on the basis of good human relationship, on the basis of their level of participation, on the basis of their different structures which we implies on their schools or intramural and extramural competition. Now next is development enhancement of their skills on the basis of organization. हम कैसे organize करते हैं competition पे intramurals and activities extramurals में. How we develop leadership qualities. छोटी छोटी activities leadership qualities को develop करती हैं. For example, increase and decrease type of relays. Tug of war one of the example. Team games आते हैं जो कि एक leadership qualities को develop करते हैं. Sensitive sports means children with sports जहाँ पर हम Paralympics, Special Olympics को trainings कराते हैं. Children with special needs के अंदर आप Paralympics, Special Olympics ऐसे चाइल्ड्स भी होते हैं जो एक कॉमन चाइल्ड के साथ ट्रेनिंग्स करते हैं और उनको इम्प्रोवाइज करते हैं. हमें चाइल्ड्स को सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना है कि उनमें व्हाट आर द गुड टच, व्हाट आर द बैड टच एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक क्राइटेरियाज आर देयर. नाउ एट लास्ट है कि हाउ वी प्लेज, हमने क्या प्लेज लिया है. नाउ मैं खेलो इंडिया का प्लेज बताने की कोशिश किया है. खिलाड़ी का हम हौसला बढ़ाएंगे. हम शपथ लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़कर मैच को हम बनाएंगे. खेलों से खिलेंगे हम, देश का मान बढ़ाएंगे, संकल्प से सिद्धि लाएंगे, हम न्यू इंडिया बनाएंगे. खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे. जय हिंद. Now at last, to summarize my point, the work development structures and programs related to 6 to 12 years. Now variety of sports will be fun. हमें interest develop करना है on the to development of their variety of sports, variation of sports, quality of sports, recreation, manipulative type of sports should be developed in intramurals or extramurals activities. After that, health related lifestyle activities को भी develop करना है जहाँ पर हम different type of diseases को minimize कर सकें at the level of 6 to 8 class, 6 to 12 या 1 to या 6 to 18 years childs को. After that, we have to use step type of activities that is called space, time, equipments and the peoples for particular plannings. Space means criteria कौन सा होगा, कौन सा equipment, time, कौन सा area आप use कर रहे हैं, indoor है, outdoor है, manipulative type of grounds है, what type of structures we have to use. Particular time duration में you have to complete learning objectives. After that, equipments है, modified है, competitions है, what type of levels we are given that some equipments are there. Now after that, peoples, what type of childs, what type of students we are using. Moderate है, big, advanced है, beginners है, mediocres है. What type of age you have to use. You are using girls and boys or combination or separate type of skills. At last, students के childs को हमें accountability रखनी है, biannually check करना है, record should be formed होना चाहिए जिससे easy way में हम students के performance को hire कर सकें. Thank you so much. Thank you so much, sir, for this beautifully delivered lessons. And I know that all the participants today here with us, those who are attending here with us today, they might have been benefited from your fruitful lessons. So, sir, as you know, like after the end of every session, we also, go for a interactive session wherein our participants share their questions and we try to answer the queries. So practically, it's not possible to take all. There are actually many questions, so it's not possible to take all the questions. But yes, of course, we will take few questions, and remaining questions we will send it to you, and you can reply the questions, and we'll provide the reply to all our participants. So there is a question asked by one teacher. Hello, sir. My name is Arshad Imam. I am from Bihar now. I am working in a Bihar middle school. Sir, my question is, I have a little space in my school, so how can I train my students game and sports? Sir, इसमें दो चीज you can develop it. First is
you can use modified type of skills, modified type of equipments. एक पर्टिकुलर एरियाज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जहां पर आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज डेवलप कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को फिजिकल फिटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं. मॉडिफाइड, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप शटल रनिंग हो गया जहां पर एजिलिटी डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाइड टाइप ऑफ गेम्स डेवलप कर सकते हैं जिससे आप इजी वे में टेक्निक्स को या किसी भी चाइल्ड्स को फिजिकल फिटनेस लेवल्स को अचीव कर सकते हैं. मेरा कहने का पर्पस ये है सर कि आपके पास एरिया कितना है, एरिया को डिफाइन करने के बाद आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को, जिससे इजी वे में आप किसी भी चाइल्ड्स को या स्कूल्स के लेवल के फिटनेस को आप अचीव कर पाएंगे सर, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर टाइप ऑफ एक्टिविटीज. ओके, थैंक यू सो मच सर. वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर वरुण कुमार. हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं जो कि पूछ रहे हैं कि क्लास और एज बेस पर क्लासिफिकेशन करना ठीक है अगर वो शारीरिक रूप से कमजोर है. यानी कि बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो ओनली क्लास एंड एज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना क्या सही रहेगा? सर आई थिंक मैं जो समझा कि इट इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. द चाइल्ड इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है तो हमें इसको क्लास में या एज वाइज सेपरेट करना जरूरी है आई थिंक. तो कर सकते हैं सर, इफ यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स या ग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं या आपके पास लिस्ट ऑन प्रॉपर एक्टिविटीज हैं तो आप कर सकते हैं. वी हैव अनदर पार्टिसिपेंट जिनका नाम है ज्योति कनौजिया और ये एक क्वेश्चन पूछे हैं सर, टीम में सभी प्लेयर्स वर्कआउट नहीं करते, कुछ बच्चे वर्कआउट करने में पीछे हो जाते हैं बट उनको टीम में प्ले भी करना खेलना भी है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? सर आप क्लास में रिक्रिएशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज को बढ़ाएं जिससे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना कर सकते हैं सर. अगर आप रिक्रिएशन या इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो रिक्रिएशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करें जिससे आप स्टूडेंट में इंटरेस्ट को डेवलप करा सकते हैं. Okay, so we will take two more questions, last two questions. No problem. And एक क्वेश्चन ऐसा है कि someone has asked, सर स्पोर्ट्स में बच्चों का योगा में बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो बच्चों में कैसे इंटरेस्ट लाएं योगा एंड स्पोर्ट्स के लिए? सर योगा में सपोज आप योगा में आप स्कूल्स में स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग असेंबली से आप योगा की सम एक्टिविटीज डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर से डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. फिर आपकी जो क्लासेस होती है वहां पर स्टार्टिंग में 5 मिनट्स या एंड ऑफ 5 मिनट्स आप योगा की एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने सेशंस में, जिससे स्टूडेंट्स को आप डेवलप करा सकते हैं. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां पर योगा आपके लिए बेनिफिट होता है और उसके इम्पोर्टेंस भी बता सकते हैं जहां पर स्कूल्स या क्लासेस में आप इम्प्रोवाइज करा सकते हैं. Okay, so this is the last question that we'll take up for the session today, and it is asked by Mr. Pramod Kumar, one of our participants, and he wants to know, sir, you tell the age of child to start the game, but in other countries, child start the game in the age of 6 to 7 years, that is China, USA, etc. Yes, sir. And what is the reason? Sir, reasons ये कि we have lacking our physical sports culture, sir. Because if you've seen that in China, maximum childs in gymnastics they won medals at the age of 14, but India में gymnastics का जो structure है up to 18 years का है sir. If we develop in physical cultures in our India so that जो age parameters है वो determine हो सकता है, effect हो सकता है sir. और ऑलरेडी आप जर्मनी हो गया या यूएस हो गया या चाइना हो गया, वहां पर ऑलरेडी फिजिकल कल्चर्स ऑलरेडी स्पोर्ट्स कल्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है. Okay, thank you very much, Praveen Kumar Mishra ji. Now I request our beloved principal, Dr. G. Kishore sir, to say a few words. Sir, for your remarks, please. Thank you, Dr. Ashutosh, Dr. Narendra, and डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने ये टॉपिक को हैंडल किया. एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज फाउंडेशन, ये स्टिल क्लास 12, ये सबसे सारे शारीरिक शिक्षक गण के लिए ये बहुत ही ये जानकारी होना बहुत जरूरी है.
क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मूवमेंट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन दोनों जुड़ा जुड़ा, आपका जो हर ये ग्रोथ का हर वक्त पर कई तरफ का मूवमेंट होते हैं। जैसे कि आप जाता है प्री नेटल स्टेज में जो मूवमेंट है उसका भी कुछ असर होता है ग्रोथ में। प्री नेटल स्टेज में इन्फेंट जैसे जन्म हो जाता है तब भी मूवमेंट है, जैसे कि उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्यून अप करने के लिए वो बिटर क्राइंग करते थे। ये रोना जो है ये एक एक्सरसाइज है जिससे उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाता है। फिर से ये कि हर स्टेज पे जैसे सुपाइन लाइंग, प्रॉन लाइंग, क्राउलिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड उधर से लेके हर ग्रोथ के टाइम पे, हर ग्रोथ के वक्त में किसी या किसी मूवमेंट है जो उनको अपनाना है, उसको बेहतरीन करना है, उसको परफेक्शन करना है। तो इसकी वजह से जो है अप टू 12 इयर्स जो है उनका, अप टू 12 क्लास 12 तक जो है उनका पूरा मूवमेंट्स का, कॉग्निटिव स्किल्स का, मोटर एबिलिटी का और फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट सिस्टमैटाइज करना बहुत जरूरी है। ये काम जो है शारीरिक शिक्षक गण के ऊपर। आज जैसे कि प्रवीण कुमार मिश्रा साहब ने बताया कि इसका पूरा थियरी विज्ञान जो है, खेल विज्ञान जो उन्होंने आपको सरल रूप से आपको बताया, लेकिन आप इसका अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आजकल पूरा लिटरेचर अवेलेबल है कि किस एज ग्रुप में कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी आपको ज्यादा असर देना चाहिए, कौन कौन सी ध्यान देना चाहिए, किस तरफ तक कर सकते हैं, किस टाइम तक कर सकते हैं, कितना इंटेंसिटी देख सकते हैं, वॉल्यूम दे सकते हैं, इनका सबका जानकारी है। तो ये बिल्कुल आपको साइंटिफिक तरीके से हर ग्रोथ का स्टेज में आपका एक्सरसाइज करवाना, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसमें होना चाहिए फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव ईयर्स में जो स्किल्स का, जो कॉग्निटिव स्किल्स का लर्निंग होता है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का, वो पूरा जिंदगी पर उनके ऊपर असर करता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, तो किस तरह का आपका इसमें ज्यादा जानकारी होना और इसका पूरा खेल विज्ञान इसके बारे में होना बहुत जरूरी है। और इसे ना मोटिवेट करने की भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप बता देते इसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को कि आपका एज इतना है, आपके अंदर इतना डेवलपमेंट होना चाहिए कि आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या आपका इसका और मोटर एबिलिटी कंपोनेंट्स आपका इतना होना चाहिए, आप ओबेस है, आप अंडरवेट है, आप ओवरवेट है, आपका पास ये कमी है, आपका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, ये सारे चीज जो है आप उनको बता सकते हैं और उसको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मूवमेंट से, थेरेपी से और एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज इज मेडिसिन ऑल्सो, जो आप एक्सरसाइज कराता है वो मेडिसिन भी है। एक्सरसाइज करना एक अच्छा है जो जिसमें कई तरफ का जो बीमारियां, कई तरफ का डिफॉर्मिटीज को आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये चीज सारे आप उनको मोटिवेट करना, उनको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना और उनको भी अकेले नहीं, बहुत ही जरूरी है। और इसलिए जो एज अप्रोप्रिएट जो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पूरा जानकारी होने का हर शारीरिक शिक्षक को बहुत जरूरी है। ये इसलिए जो है हर एक के लिए आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको ज्यादा आप उसको पढ़ना, आपका ज्यादा सिर्फ इसीलिए आप इस टॉपिक को हमने इसको साथ जुड़ा है। अगर आपको इसको ज्यादा जानकारी चाहते हैं, अभी हमने कई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का जवाब तो हमने दिया, और आपका कोई और जानकारी इसमें चाहते हैं तो आप निसंकोच हमसे मेल कर लीजिए। हमारा मेल आईडी वगैरह इसमें दिया हुआ है। हम आपको इसमें जो भी आपका डाउट्स है उसको क्लियर करने में हमारे लिए खुशी होंगी और आपको पूरा जानकारी इसमें दिए जाएंगे। मैं फिर से एक बार जो प्रवीण कुमार मिश्रा साहब को मुबारक देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह आपने क्लास ले ली और मेरे सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को इसके अंदर इसकी बिल्कुल बहुत जानकारी मिली होगी और मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. You have just mentioned a beautiful line that is called that is exercise is the best medicine. Indeed, it is the best medicine that ever we can have. It is a blessing for all the human beings. All of us.
So Sri Praveen Kumar sir, it was indeed a beautiful, we had a beautiful session with you all. I'm sure all the participants might have been benefited out of it. So on behalf of Sports Authority of India, Lakshmibai National College of Physical Education and Khelo India, I congratulate, rather thank you for being here with us for today. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And I also have an announcement for all the participants today. All the participants today in the evening, in the afternoon session, we are going to have Sri Sujit Panigrahi and as the expert. So he will be talking about progressive curriculum structure for N to 12 classes, nursery to class 2, class 3 to 5. So the session will begin sharp at 3 p.m. So you all are requested to join by 2:45. So that was the announcement from our side. And a poll has been displayed on your screen. You can please respond to the poll on the basis of which your attendances will be noted. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Have a great day. Thank you. Thank you. Thank you, Praveen sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Can I leave, sir? Yeah, please. Thank you, Praveen ji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Narendra, sir, thank you.